میں فراد احمد صدیقی ملحد ہوں۔ آپ کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ کافر اگر آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے تو آپ کہہ لیں، بریلوی کو میں مشرک کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے دنیا میں کام ہوتا ہے اس پہ؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ نہیں، جھوٹ ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، آسمانوں سے کوئی ندا نہیں آتی، اوپر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، آج میں یہ مانتا اب ہوں۔ جی آپ تو جی کافر ہیں نا؟ جی آپ کا جی جی اوپینین تو ہم مسلمان تو منافقت کر سکتے ہیں، آپ تو منافق نہیں ہے نا؟ آپ کا تو آنےسٹ بالکل۔ اوپینین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر فراز صدیقی صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ آپ کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خدا حافظ، سب کہہ سکتے ہیں، جی یہ بالکل۔ خدا حافظ کیسے؟ خدا کا تو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کلچر تو ہے نا۔ اب اسی کلچر میں 25 سال، بلکہ اب تو تقریباً 45 سال گزار دیے، تو کلچر چھوڑنے کی کیا ضرورت یعنی ہوتی خدا ہے؟ آپ کو ثقافتی اعتبار سے، رسمی اعتبار سے تو قابل قبول ہے، لیکن ہاں بالکل۔ معبود کے طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کی چیزیں تو انسان نے خود انوینٹ کر لی ہیں نا، بہت ساری ہوں بہت سارے رشتے، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے نیشنلزم ہو گیا، کمیونزم ہو گیا، سوشلزم ہو گیا، یہ سب مین میڈ ہیں، لیکن سب آپ نے ان کو مان لیا نا، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہی ہیں۔ تو ہوں پھر ایک خدا کے ایک مجرد تصور کے ساتھ جس سے آپ کی سوشل لائف انٹیگریٹڈ ہوتی ہے، اس کو اختیار کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ صحیح۔ تو آپ کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ کافر، کافر کا مطلب ہوتا ہے جس نے، مطلب کوئی چیز کفر چھپانے کرنے والا، والا، مطلب انکار کرنے والا۔ کسان کو کہتے ہیں کافر، تو یا جو چھپا لے، لیکن کفر تو اس چیز کا ہوگا نا جس کو آپ چھپائیں، مطلب میں چھپا تھوڑی رہا ہوں۔ جب الحاد جو ہے وہ چھپانے کا نام تھوڑی ہوتا ہے، الحاد تو ہے کہ یہ دس از آل رانگ، یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہوں کفرا جو ہے وہ بیج ڈال کے مٹی اوپر اس کے چھپا دیں اسے، تو اس کو کفرا کہا جاتا ہے۔ تو جو ایمان کو چھپا لیتے ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو کہ جان تو گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کو چھپاتے تھے، تو ہوں وہ کفار تھے۔ آپ کے انکاری جو تھے ان کو کفار آپ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، مطلب مجھے کوئی مسئلہ نہیں مشرک آپ کو نہیں کہہ سکتے، چونکہ آپ تو کسی کو ہے۔ کسی سے شریک ٹھہرا ہی نہیں سکتے نا، آپ تو مطلب آپ کا تو نہیں، آپ تو اس سے نکل گیا کیٹیگری سے۔ جی جی بالکل بالکل، مشرک نہیں کہہ سکتے، کافر اگر آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے تو آپ کہہ لیں، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی ہوں اور لیبل لگانا چاہیں تو لگا، بٹ آل دیز لیبلز آر مین میڈ، تو اس ہوں سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ایز لانگ ایز آئیڈیالوجی آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ نہیں، ہے کیا، نام کچھ اگر بھی رکھ لیں۔ آپ مین میڈ اختراع پیدا کر سکتے ہیں کہ خدا ہی نہیں ہے، تو ہوں۔ یار آپ اتنا تو مین میڈ اختیار دوسروں کو بھی دینا کہ وہ آپ کو کافر کہہ سکے۔ ہاں ہاں بالکل، مطلب مجھے، میں یہ ہاں خالی ایڈس کر رہا ہوں کہ ہر لفظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہوں تو اگر آپ کفر آپ کا یہ ہے، سمجھیں کہ بھائی آپ نے پورا پڑھ لیا الحاد کو، اس کے بعد کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ لوگ تو کافر ہیں، تو آپ کہہ لیجئے، لیکن غصہ نکالنے کے لیے کہنا ہے تو اس سے پھر اصل میسج چھپ جاتا ہے۔ جیسے جب ہم کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو اس کو اپنا، ہمارا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو اسلام پہنچانا چاہیے کیونکہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، وہ اپنی ہوں زندگی میں خوش ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس پہ ایک لیبل لگا کے اپنی ذہنی ساخت بدل لیتے ہیں، تو مجھے اس ذہنی ساخت بنانے سے اختلاف ہے، باقی ناموں میں کیا رکھا ہے، آپ کافر کہیے، مشرک کہیے، ملحد کہیے، مردود کہیے، آپ جو دل چاہے کہیے۔ منکر کہہ سکتے ہیں۔ جی جی منکر کہیے۔ ہوں مردود کا مطلب بھی رد کیا ہوا ہے نا؟ جی جی، جس چیز کو رد کر دیا گیا، لیکن وہ مردود کا مطلب ہوتا ہے کسی اور نے اس کو رد کیا، ہاں مطلب یہ کہ جو میں خود کبھی کبھی اپنے آپ کو ملحد مردود اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ سب لوگ ہمیں رد ہی کرتے ہیں نا، مسلمان۔ ہوں تو آپ ویسے ایک دوسرے کو آپ لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ بھیا ہمارے والدین نے ہمارے نام رکھے ہیں، تو کوئی، اب میں آپ کو کوئی شیعہ تھوڑی بلاؤں گا، آپ کے ہاں نام سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آپ شیعہ مسلک سے ہوں، لیکن میں آپ کو مومن یا شیعہ تھوڑی بلاؤں گا، میں آپ کو آپ کے نام سے بلاؤں گا، ہوں تو ہمیں بھی نام سے ہی بلاتے ہیں۔ اچھا۔ ویسے یہ سوال کسی فرقے میں آپ کیوں نہیں پوچھتے، مطلب اگر آپ ایک دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور احمدی سے بات کر رہے ہیں، ہوں تو اس کو آپ کوئی لقب کیوں نہیں دیتے، مطلب بریلوی کو میں مشرک کیوں نہیں کہہ سکتا، نہیں، یا میں میں جو میں ہوں۔ میں تو ایک گروپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہوں، جب آپ جب تک آپ مسلمان تھے تو آپ لوگوں سے ملتے تھے تو آپ یہی کہتے ہوں گے نا، ہاں زید، بکر، امجد، ہاں شعیب، ہاں، تو جمیل، ابھی بھی یہی شکیل، کیا کہتا ہوں، حال ہیں؟ میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ ہاں جی میں فراد احمد صدیقی ملحد ہوں، نہیں بھائی، وہاں میں جا کے اپنا نام ہی بتاتا ہوں بس۔ تو جو آپ کا ایک گروپ ہے، جی جی اس گروپ کو
कैसे एक्स मुस्लिम्स कह लें, मुल्लिदीन कह लें, मतलब एक्स मुस्लिम से हमारी शनाख्त जो है वो वाज़े हो जाती है कि आप कौन से मज़हब को छोड़ कर आए हम्म। हैं। इल्हाद या मुल्हिद या एथियस्ट जो है वो एक जनरल टर्म है। हम्म। आपके हर मज़हब का छोड़ने वाला इंसान एथियस्ट हो सकता है, लेकिन हर मज़हब को छोड़ने वाला एक्स मुस्लिम नहीं हो सकता। तो ये आपके पीछे मुझे किताबों के रैक्स नजर आ रहे हैं। जी। इनमें से किसी किताब ने आप पर कोई असर नहीं किया? किताबें पढ़ के तो ये हाल हुआ है भाई साहब, किताबें नहीं पढ़ता तो ईमान से लबरेज होता। मतलब कि इनमें से किसी किताब ने आप पे कोई असर नहीं किया बिल्कुल? असर पहले बहुत ज़्यादा था। पहले मैं बहुत ही कहना चाहिए शदीद किस्म का मुसलमान था, हम्म। इल्मी तौर पे मुसलमान था। लेकिन जब मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि इल्हाद को हराने के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए मैंने इल्हाद को, फ़लसफ़े को, तारीख़ को पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद मेरा जहन बदला है। क्योंकि जो आपको पीछे किताबें नज़र आ रही, ये मेरा असल में तफसीरों वाला रैक है, तो इसमें सीरत और तफसीरों की किताबें हैं। तो बक़िया किताबें हैं वो उस कमरे में, दूसरे कमरे में। तो इनको तो वो तो हमेशा नैरो माइंडेड होती हैं, वो आपको एक मज़हब के बारे में ही बताती हैं, तो उस हम्म। मज़हब को पढ़ के उस मज़हब की हकानियत पे ईमान लाना तो एक आम सी बात है। तो लेकिन अगर आपका मज़हब आपको सच्चा महसूस हो आफ्टर स्टडी ऑफ फिलोसफी एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, वो एक बड़ी बात होती है। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम उस पर पूरा नहीं उतरा मेरे लिए। हम्म। गुज़श्ता यानी पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात वहां खत्म की थी जब आपने कहा कि ज़कात आप किसी को नहीं दे सकते, यानी हम जी। मुसलमान किसी को ज़कात नहीं दे सकते। तो हाँ ठीक है, हम किसी को ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन उस ज़कात से, क्योंकि आप ये केस बिल्ड कर रहे थे कि हम जो मुल्हिद हैं हम इंसानियत पे बिलीव करते हैं, हमारा मजहब इंसानियत है। तो मैंने आपसे काउंटर आर्गुमेंट दिया कि इंसानियत पे तो इस्लाम भी बिलीव करता है, और सबसे बड़ा दाई है इस्लाम इंसानियत का। तो आपने कहा नहीं, ज़कात तो आप नहीं देते किसी को, आप तो अपनों पे खर्च करते हैं। तो आप डॉक्टर हैं, कराची में कितने ही हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, जो ज़कात पे चलते हैं, सदकात पे चलते हैं। क्या कभी उस हॉस्पिटल ने पूछा कि हाँ यहाँ कराची का पारसी क्यों आ रहा है, यहाँ कराची का ईसाई क्यों आ रहा है, कराची का सिख क्यों आ रहा है? तो सबका इलाज करते हैं। ऐसा होता नहीं असल में। वो जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जब आप पर्ची कटवाते हैं, पेमेंट देते हैं, तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, मैं खैराती अस्पतालों की बात नहीं कर रहा। जो खैराती अस्पताल होते हैं वो तो खैरात, ज़कात, सदक़ात सब पे ही चलते हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो आपको पूछेंगे कि आप का इलाज ज़कात से करें, तो वो अगर इजाज़त देंगे तो वो किया जाता है। लेकिन वो ऑप्शन उन्हीं को मिलता है जिनके शनाख्ती कार्ड पे इस्लाम लिखा होता है। वहाँ पे अगर आप जाएं और आप क्रिश्चियन हैं तो आपको ज़कात का फॉर्म नहीं दिया जाएगा। मतलब ये मेरा अपना तजर्बा है। मैं काफ़ी 2006 में मैंने पाकिस्तान छोड़ा है, तो उस वक्त तक तो यही होता था। मुझे यकीन है कि आज भी यही होता है। जो खैराती अस्पताल हैं वहाँ पे ये काम होता है, तो इसमें इस्लाम का कमाल थोड़ी है। मतलब इसमें इस्लाम का क्या कमाल है, ऐसा तो हर मज़हब वाले करते हैं। नहीं, मैं मेरा देने कहने का वाले की मकसद ये बात है। करूं, मैं जी देने जी। वाले की बात करूं। जी, जो 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 लोग देते भी हैं, तो एक जैसे अगर आप जैसे कुछ अस्पताल हैं, मैं उनको जब भी अपनी तरफ से कुछ करता हूँ तो मैं उनके लिए करता हूँ। इंडस हॉस्पिटल है, SIUT है कराची में, गुर्दों के इलाज के लिए, वो बड़े हम्म। ज़बरदस्त लोग हैं, अमेजिंग पीपल हैं। लेकिन जब भी आप उनकी वेबसाइट पर डोनेट करेंगे तो उस पे भी खाने बने होते हैं कि ये हम्म। सदका है, ये ज़कात है, ये फितरा है, या ये सिर्फ डोनेशन है। हम्म। तो जो दे रहा है वो ज़कात समझ कर दे रहा है कि मेरी ज़कात अदा होगी जिससे मुसलमानों का इलाज किया जाएगा। अगर वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब उसको नहीं मालूम कि ये कोई फ़िक़्ह के अंदर ये तखसीस है कि आप ज़कात सिर्फ मुसलमान को दी जाएगी, तो वो नहीं जानता, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जानता है वही समझ के दे रहा है, और जहाँ पे ये जमा होते हैं पैसे, वो भी इसको ज़कात, फ़ितरा, सदक़ात इसकी मद में ही खर्च करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पूरा पूल एक जगह आ गया और उस पूल से फिर सबका इलाज हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा होता है तो फिर आप जो है वो ज़रा मालूमात कर लीजिए, हो नहीं सकता नहीं, है मैं गलत हूँ। एक तो ये है ना कि आप जाके जब क्लेम करेंगे कि आप ज़कात के पैसे पे चलना चाहते हैं, जैसे शौकत खानूम है, हम्म। वो नहीं आपसे पूछता कि आप लिख के दें कि आप ज़कात लेना चाहते हैं। आप सिर्फ ये बताते हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो आप माजरत के साथ किसी हद तक गलत इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे हम्म, हॉस्पिटल्स हैं। ये और एक और कराची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल ब्रांड बन चुका है अब तो, वो लाहौर में भी और शायद बाकी, इंडस हॉस्पिटल। वो जी जी, आपसे मैं नहीं भी इसको पूछता कि जानता हूँ। आप लिख के देंगे आप ज़कात, आप सिर्फ ये बताते हैं। वहाँ वो काउंटरलेस हॉस्पिटल है, कैशलेस। मेरे ख्याल से उसका उसका जो फॉर्म है वो आप दोबारा देख लें। उसमें ये तखसीस होती है जब जो है वो आपको कहा नहीं, जाता है मैं आपको कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप जिम्मेदारी खुद से बता रहा जानते हूँ हैं, कि आप मुझसे अगर बेहतर गए, जानते हैं तो आप ठीक है। मतलब आप मैं वहाँ आपकी बात गए, मान लेता हूँ। जी आप वहाँ गए, आपने बताया कि आप जिस भी अपने तिब्बी मसले के लिए गए, आपने उनको बताया, आप एडमिट हो गए। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप बताएं कि आपका मजहबी पस मंज़र क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। हाँ ठीक है, बाज़ जगहों पे ऐसा होता होगा, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा नहीं ज़्यादा होता। बेहतर, ज़्यादा सही बात यह है कि चंद जगहों पे ऐसा नहीं होता। अक्सरियत में वैसा ही होता है जैसा मैं बता रहा वो ठीक है, वो पुराना एक, हूँ। चूंकि बहुत सारी चीजें आपके सिस्टम का, एसओपी का हिस्सा बन जाती है ना। देखिए, लेकिन उससे आपके आपका दीन नहीं बदल जाता। मतलब हम्म। आप एक दीन के एक बात पे अमल नहीं कर रहे, उससे ये नहीं हो जाता कि आपने दीन को रोक दिया। अगर आप आज ये कह दें कि नहीं नहीं, इस्लाम में कोई लौंडी गुलाम बिल्कुल नहीं है, जैसे जावेद अहमद गामदी साहब की इंटरप्रिटेशन है, मिस्र में कई जदीद उलमा है उनकी इंटरप्रिटेशन है कि नहीं कोई गुलामी नहीं है। इस पे जो नए मुसलमान हैं जैसे डॉक्टर एंड्रयू लॉर्ड, उनकी किताब है, वो बड़ी उन्होंने मुफस्सल तरीके से लिखा है कि नहीं नहीं नहीं, इस्लाम में कोई लौंडी गुलाम नहीं थे और ये नहीं था वो नहीं था। उससे आपका मजहब नहीं बदलता। उससे सिर्फ ये बदलता है कि आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लिया, उसको री इंटरप्रेट कर लिया। आपने कुरान मजीद की आयत को लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लिया, उसको री इंटरप्रेट कर लिया। उससे आपका दीन नहीं बदलता। उससे सिर्फ ये होता है कि आपको ये महसूस होता है कि यार आज मैं इस इस्लाम 2.0 3.0 पे 21st सेंचुरी में अमल कर सकता हूँ। उससे सिर्फ ये होता है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, मेरी मालूमात कम होगी यकीनन, मैं पाकिस्तान छोड़े हुए मुझे बहुत अरसा हो गया। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। मतलब जो हमारा जो बात करने का मकसद है वो इस्लाम, और इस्लाम को क्यों छोड़ा गया। तो आप इस्लाम पे बात करें, लोगों का अमल जो आज हो रहा है वो दलील नहीं बन सकता। सहाबा का माला पेश कीजिए, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। हम्म। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली अ, जदीद मॉडर्न कंटेम्प्रेरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पहली मुल्हिद रियासत कौन सी थी? नहीं, मैं नहीं जानता। 1917 में सोवियत यूनियन में उन्होंने इल्हाद को इख्तियार किया, और उसके बाद फिर ओह 19, अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट, अच्छा जी जी जी। हाँ, हम्म। फिर 1949 में चाइना में इल्हाद को इख्तियार किया गया। 1967 में बाकायदा तौर पे अल्बानिया ने, वो एक मुल्हिद रियासत, शायद मेरा ख्याल है, अगर बाज़ाब्ता पहली रियासत मुल्हिद कहें तो वो अल्बानिया है। तो कितना बड़ा नेटवर्क है आप लोगों का, कनेक्ट हुए हैं आप लोगों से। आप तो खैर अभी नए नए दायरा इस्लाम से खारिज हुए हैं ना, दायरा इल्हाद में दाखिल हुए हैं आप, तो कितना बड़ा नेटवर्क आपने निकाला है कोई? नहीं, मुझे मालूम नहीं भाई साहब। मैं जो हूँ वो चंद पाकिस्तानी लोगों को जानता हूँ जो एथियस्ट हैं। ईमेल्स पे वगैरह पर रब्ता होता है जो पाकिस्तानी या उर्दू, क्योंकि मेरा बेसिकली काम उर्दू में है, मैं इंग्लिश में नहीं करता। तो वो उनसे रब्ता है। लेकिन ये अब अल्बानिया और रशिया, तो इन तक तो मेरी पहुंच नहीं है। हम्म। ना मुझे सबसे सबसे पहले तो मुझसे पूछा जाता है कि तुम्हें फंडिंग कितनी मिलती है। तो हाँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपके ख्याल से मुझे जितनी फंडिंग मिलती है आप उसका आधा मुझे दे दीजिए, मैं आज अपना चैनल बंद करके तौबा कर लेता हूँ। तो कोई बाकायदा नेटवर्क अगर है तो मुझे मालूम नहीं। शायद मैं थोड़ा और मशहूर हो जाऊंगा तो फिर लोग रब्ता कर लेंगे। अभी नहीं, वो फिलहाल तो ऐन नहीं है। मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ साजिशें तो, जब तक आप मुसलमान थे तब तक तो आप इस बात को मानते होंगे ना कि इस्लाम के खिलाफ साजिशें। नहीं नहीं, जब मैं आ, बहुत पक्का मुसलमान था और तारीख का मैंने काफ़ी ज़्यादा मुताला किया है, तो ये सिर्फ एक कहना चाहिए हारी हुई कौम की सोच है कि सब लोग इस्लाम के खिलाफ हैं। नहीं, सब लोग नहीं। तो क्या ऑनेस्ट ओपिनियन, देखिए हम्म, ऑनेस्ट ओपिनियन, अब आप जी तो जी काफिर है ना, जी आपका जी जी। ओपिनियन तो, आप, हम मुसलमान तो मुनाफिकत कर सकते हैं, आप तो मुनाफिक नहीं है ना। आपका तो ऑनेस्ट बिल्कुल। ओपिनियन होना चाहिए। जी जी जब तक बिल्कुल। आप मुसलमान थे, जी क्या ये हकीकत नहीं है कि इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे, इस्लाम को कमजोर करने के लिए, मुस्लिम यूनिटी को कमजोर करने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए, एक बकायदा तौर पे दुनिया में काम होता है इस पे? क्या ये हकीकत नहीं है? नहीं, झूठ है।
मैं बताता हूँ कैसे झूठ है। हम्म। जब भी इस तरह के काम किए जाते हैं उसके मकासद सियासी होते हैं। सियासी मकासद के तहत आप लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एजेंडा मजहब नहीं होता। ये जो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कई सदियों से, माजरत के साथ मैं इसको लॉलीपॉप ही समझता हूँ, कि इस्लाम आपको जोड़ता है, ये सब अहमकाना बातें हैं। इस्लाम ने कभी किसी को नहीं जोड़ा। मजहब किसी को सियासी तौर पे नहीं जोड़ता। माशी तौर पे जोड़ सकता है, सियासी तौर पे कभी नहीं जोड़ता। एक वक्त में यानी 900 से 1100 ईस्वी तक इस्लामी मुमलकत में यानी बिलाद इस्लामिया में तीन खिलाफतें मौजूद थीं। तीनों अपने आप को खलीफा कहती थीं और तीनों के मानने वाले थे। तीनों आपस में जंगें करते थे, तीनों एक दूसरे की मदद भी नहीं करते थे, और तीनों खिलाफतें कायम रहीं, और आज हम उनको इस्लामी खिलाफतों के नाम से ही उसकी हिस्ट्री पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम से किसी को कोई मसला नहीं है। आप ये बताइए कि इस्लाम को लेकर आखिर मुसलमानों ने किया क्या है। मतलब मैं किसी एतराज़ के अंदर नहीं कह रहा, मैं खाली सोचने की दावत दे रहा हूँ। जिन लोगों को आज आप साइंटिस्ट कहते हैं उनके तो आप नाम भी नहीं जानते। अगर अंग्रेज़ आपको नहीं बताते तो आप कभी जान भी नहीं सकते थे कि मुसलमान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किया क्या क्या है। आज आपको जो है, अगर आप टर्की जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जनाब मौलाना रूमी का मकबरा कहाँ पे है। आप इराक़ जाएंगे तो जो है वो क्या नाम है, वो जो वली अल्लाह हैं, अब्दुल कादिर जिलानी साहब, उनका मज़ार आपको पता चल जाएगा। किसी को मालूम है कि अल बैरूनी कहाँ दफन है, अल ख्वारज़मी का मज़ार कहाँ है, वो अली सीना कौन सी खाई में पड़ा हुआ है, किसी को नहीं मालूम। तो वो ये आपके हीरोज कभी थे ही नहीं, तो आप खामा में आप उनको लेते हैं। तो इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ साजिशें होती हैं, तो पहला सवाल ये होता है कि इस्लाम सियासी, माशी, फौजी या किसी और तरीके पे आप डोमिनेंट आप था कहाँ। सैमुअल पी हंटिंगटन को कभी आपने सुना है उसका नाम? जी जी, जानता हूँ, हिस्टोरियन है, फिलोसफर है तो उसने किताब लिखी थी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जी जी उसको कभी आपने पढ़ा है? जी जी, उसका वो थीसिस है कि इस्लाम बाकी रह गया है, लेकिन उससे मुराद इस्लाम की उसमें भी सियासी तो वो कुव्वत है। ये तो अ, उसमें डॉगमा थोड़ी मज़ाहिब है। के टकराव की बात कर रहे हैं ना। जी जी, तो उसमें वो उन कौमों की बात कर रहा है जो हम्म। मुसलमान अपने आप को कहते हैं। हम्म। मतलब ये कि वो ये नहीं है कि इस्लाम और यहूदियत का मुकाबला हो रहा है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का मुकाबला हो रहा है, नहीं, वो उन ममालिक का मुकाबला है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और क्योंकि सैमुअल पी हंटिंगटन की किताब काफ़ी पुरानी है, तो उस वक्त तक हम्म। मजहबी आइडेंटिटी एक चीज़ होती थी। और फिर उसके बाद ये प्रोपेगेंडा, मैं अलबत्ता आपको कहूँगा ज़रूर कि ये प्रोपेगेंडा ज़रूर किया जाता है, और ये हिस्टोरियंस की तरफ से है जो 1800s 1900s में आए, कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी क्रिश्चियन इंपीरियलिज्म है। यानी जब पूरी दुनिया में कॉलोनियलिज्म आ गया, पोर्चुगीज का, अंग्रेज़ों का, फ्रेंच का, हम्म। उसको उन्होंने कभी भी क्रिश्चियन इंपीरियलिज्म नहीं कहा। लेकिन मुसलमानों की तारीख में उन्होंने इस्लामिक इंपीरियलिज्म की एक इस्तिलाह निकाल दी। वो हम्म। बात दुरुस्त है कि तारीख का ये बयानिया करना यानी ऐसा किसी इस्लाम कौम को चूंकि मातूब करने के इस्लाम लिए। फैलने की बात करता है ना। इस्लाम आखिरी मजहब है। इस्लाम कहता है कि आप उसको फैलाएं। तो इसलिए वो उसको इंपीरियलिज्म का नाम दिया जाता होगा ना। चलिए, मेरा 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 मौक़िफ़ ज़रा अलग है, लेकिन आप मान लीजिए ये बात। आई डोंट थिंक सो कि ये शायद सिर्फ सियासी बढ़तरी को चैलेंज कर ली कि उन्होंने इस्लामिक इम्पीरियलिज्म की इस्तिलाह ईजाद की थी, क्योंकि उस वक्त जो थी वो मुसलमानों में फिर भी कुछ दमखम था, फौजी तौर पे, माशी तौर पे उनमें दमखम था। लेकिन ये कि वरना ऐसा कभी भी नहीं था। वरना ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मज़हब की वजह से किसी कौम ने जो है वो दूसरी कौमों पे चढ़ाई की हो और उनको कहना चाहिए कि फतह किया हो, उनकी रिसोर्सेज ली हों। ऐसा हुआ नहीं कभी भी। हम्म। जब जब भी हमले किए जाते हैं उसका मकसद जो है वो कहना चाहिए कि माल जमा करना और सियासी तौर पे अपने आप को महफूज करना ही है। अब हम अक्सर बातें करते हैं कि हज़रत उमर के दौर में मदीने में लोगों को ज़कात देने के लिए कोई नहीं मिलता था। बात दुरुस्त है ये, लेकिन दूसरा सवाल हम नहीं पूछते कि इतना माल आता कहाँ से था। तो ये खराज का माल था, ये माल गनीमत था जो आपने हलाल किया था, जिसको आप लेके करते थे। और इसमें मैं मुसलमानों को कोई मातूब नहीं करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त नहीं, यही होता माले था, आज गनीमत भी यही हो में रहा है। और लुटेरे होने में फर्क है। आप क्या माले फ़र्क है? गनीमत की कॉनोटेशन लूटने से नहीं दे सकते। फिर क्या होता है माल गनीमत? माले गनीमत आप लूटते हैं क्या जाके? आप बतौर लुटेरा जाते हैं? तो और क्या करने जाते हैं, आप बताइए। नहीं, आप यानी आप जो आपने जंग हो रही आपने है। एक मुल्क को फतह कर लिया,
हाँ। اور آپ نے کہا کہ میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. ہوں یہی ہے نا کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نکلے اور آپ نے فارس فتح کیا، بائزنٹین روم فتح کیا، مصر تک پہنچ گئے، سندھ فتح کیا. تو جب آپ نے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے یہاں پہ آپ آئے تھے تو ان سے آپ مال کیوں لیں گے؟ مطلب چلیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کو کنفرم کر لیجیے گا کہ انڈیا پہ جو ہے جب مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو ہوں راجہ داہر، جس کو آج برا بھلا کہتے ہیں، اس نے مسلمانوں کو کم از کم 3 دفعہ ہرایا. اس کے باپ نے مسلمانوں کو 4 یا 5 دفعہ ہرایا. ٹوٹل 7 جنگیں مسلمان ہارے ہیں انڈین سے ہوں جب انہوں نے حملے کرنے شروع کیے، جس میں تابعین بھی ہوں گے، شاید کو صحابہ بھی ہوں، میں اب جانتا نہیں. تو یہ حملے جب ہو رہے تھے تو 6 جنگیں مسلمان ہار چکے تھے. 7ویں جنگ کے لیے حجاج بن یوسف جب گیا ہے خلیفہ کے پاس، تو اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو 3 گنا مال غنیمت لا کے دوں گا. مجھے آپ یہ یہ جو ہے مہم، اس پہ جانے کی اجازت دیجیے. تب ان کو اجازت ملی ہے. ہوں تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ مال غنیمت کو اگر میں لوٹ کا مال نہ کہوں تو اس کے لیے بہتر اصطلاح کیا ہوگی؟ یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں اب یوں کہیے کہ اگر میں کسی قوم پہ جا کے حملہ کرتا ہوں ہوں تو مجھے کس حیثیت سے، کس مذہبی حیثیت سے اس کا مال لینے کی اجازت نہیں، ہے؟ ایک ایک ہیں مغل امپائر، آٹومن امپائر، ابدالیز، غزنویز، مملوکس، یہ ان کی بات نہیں میں کر رہا. یہ تو میں نے آپ کو ان کی مثال بھی نہیں دی. یہ تو بادشاہتیں تھیں نا، یہ تو کیوں؟ میں نے ملوکیت آپ تھی. کو میں نے آپ کو ان کی مثالیں بھی نہیں دی. میں آپ کو دیکھیے، میں کبھی بھی نا رسول اللہ کی ذات پہ اور صحابہ کرام کی ذات پہ بات نہیں کرتا، ہوں کیونکہ وہ مناسب نہیں ہے. وہ محترم ہستیاں ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، ان کی ایک ریلیجس ویلیو، اس لیے میں ان پہ بات نہیں کرتا. اس لیے میں نے آپ کو حجاج بن یوسف کی مثال دی. ہوں تو حجاج مال بن یوسف غنیمت، کوئی آئیڈیل کریکٹر نہیں ہے اسلام کے لیے. میں نے وہ تو ایک میں نے ظالم نہیں کہا حکمران کہ وہ آئیڈیل کریکٹر ہے، تو میں نے نہیں فاشسٹ کہا تھا. وہ آئیڈیل کریکٹر اب ہے. آپ میں آپ عبید کو اللہ ابن، وہ بصرہ کا حکمران تھا، عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا. آپ ابن زیاد کی مثال دے دیں. وہ ہمارے لیے سند تو نہیں ہے نا. نہیں، سند تو نہیں ہے، لیکن پھر میں مطلب میں چاہتا نہیں کہ میں اب صحابہ پہ بات کروں، تو اس سے آپ مجھے معاف رکھیے. ہوں لیکن بہرحال مال غنیمت جو ہے، اگر وہ لوٹ کا مال نہ ہوتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کی ضرورت نہیں تھی کہ میری ڈسٹنکشن ہے یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. یہ بھی حدیث موجود ہے، یہ فقہ میں بھی موجود ہے. آپ چاہیں تو کسی اسلامی اسکالر کو اگلی بار بلا کے اس پہ مزید تفصیل پوچھ لیجیے گا. لیکن اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو ڈسٹنکشن دینے کی ضرورت تھی نہیں، ہوں کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ ہاں یہ لوٹ تھوڑی ہے. لیکن آپ نے باقاعدہ یہ ڈسٹنکشن دی ہے، ہوں کیونکہ باقی مذاہب میں یہ منع ہے. جوڈیزم میں یہ منع تھا، کرسچینٹی میں یہ منع تھا. جو کرسچینٹی بعد میں ریفارم ہو گئی اس کی بات ایک اور ہے. لیکن تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کو ڈسٹنکٹ کیا ہے کہ میرے لیے یہ حلال کیا گیا ہے. تو حلال کون سی چیز کی جاتی ہے؟ جو پہلے سے حلال تھی اس کو تو اب دوبارہ حلال نہیں کرتا. حلال وہی چیز کی جاتی ہے جو پہلے منع تھی. اونٹ کے کوہان کی چربی بنی اسرائیل پہ حرام تھی، وہ اسلام میں آ کے حلال ہوئی ہے تو اس کا ذکر آیا ہے. تو حلال آپ اس چیز کو کرتے ہیں جو پہلے منع تھی، جس کے بارے میں اشتباہ تھا. سور کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ کیٹل ہے یا یہ درندہ ہے، کیونکہ گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزی بھی کھاتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے بتایا کہ نہیں وہ حرام ہے. تو حلال آپ جب آپ کسی چیز کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں وہ حرام تصور کی جاتی تھی یا اس کے بارے میں شبہ تھا. ہوں تقریباً 600 قبل مسیح، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو چارواک یا چارواکا فلسفی آئی. کبھی اس سے پڑھا؟ پہلے اس سے پہلے جی جی کہیے کہیے، چارواک فلسفی، جی جی. ہاں، جو کہ مٹیریلسٹک مادیت پر مبنی تھی. وہ خدا پہ، پلیجر بیسڈ، جی جی. روح پہ اور مرنے کے بعد کی دنیا پہ یقین نہیں رکھتے تھے. بالکل. اسی طرح پھر قدیم یونان میں ایپیکیوریس اور ڈیموکرائٹس جیسے جو لوگ تھے، انہوں نے بھی دنیا کی جو انٹرپریٹیشن کی وہ اسی مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے. وہ بھی دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتے تھے. یعنی یہ بہت پرانی تاریخ ہے، ہزاروں سال کی، کہ جو لوگ کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتے تھے. لیکن الٹیمیٹلی اس سوچ کو شکست ملی اور دنیا میں کوئی نہ کوئی مذہب ہی کسی نہ کسی خدا کے نام پر ہی پوجا جانے لگا. چاہے وہ مسیحیت ہو، یہودیت ہو، اسلام ہو، یا یہ جو الہامی مذاہب ہیں ان کے علاوہ دوسرے مذاہب. تو اس کا مطلب ہے ایسے ہی کہ ہو. جو اپیل ہے وہ کسی خدا کے وجود کو تسلیم کرنے میں ہے، اس کی جستجو میں ہے، تلاش میں ہے. اپیل اس میں نہیں ہے کہ خدا ہی نہیں ہے، جو آپ جس کام میں آپ لوگ لگے ہیں. ایک بات بتائیے،
जिम जाना ज्यादा मुश्किल है या जिम ना जाना ज्यादा मुश्किल है? रोजाना जो उठ के जिम जाना, हाँ। इज इट हार्डर, या मेरा ये ख्याल कि है ऐसी कौमें मेक एन हैं जैसे, एक्सक्यूज सिटिंग एट होम? मेरा ख्याल है ऐसी कौमें हैं नहीं जैसे नहीं, मैं अमूमी बात नॉर्वेजियन कर रहा हूँ, हैं, मैं किसी कौम की बात नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलियंस हैं, न्यूजीलैंडर्स हैं, वो नहीं तो मेरा ख्याल है उनके लिए उनके लिए जिम ना जाना ज्यादा तकलीफ भी दे। आसान क्या होगा कि बैठे रहें या उठ के जिम जाएं? मेरा ख्याल है उनके लिए आसान जिम जाना है, बैठे रहना उनके लिए तकलीफ दे है। नहीं वो तो आप नहीं 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 नहीं, आप एक तरफ मुझे मिसाल दे रहे हैं तमाम इंसानों की, और जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप उसको उन कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं जो कि नहीं, सेहतमंद कल्चर हैं, मैंने जापानीज, तो तमाम नॉर्वे, इंसानों की मिसाल नहीं दिया। नॉर्वेजियंस, स्कैंडिनेवियंस। मैंने तमाम इंसानों की नहीं, मिसाल, आपने मैंने कहा तो ना आपसे तमाम कहा कि इंसानों में जो है वो मजहब की अपील ज्यादा रही है। हाँ तो मैं हाँ। वही कह रहा हूँ ना कि तमाम इंसानों को अगर हम देखें तो फिर अपील क्या होगी कि वो जिम जाएं रोजाना उठ के या जिम ना जाएं? तो जो नहीं जाहिर जाते सी हैं, बात है कि जिम ना जाएं आप। जो जिम नहीं जाते उनको रोग समझा जाता है ना। आप डॉक्टर हैं, आप हौसला अफजाई करेंगे उनकी। चलिए आप ही की मिसाल को ले लेते हैं। आप जिम जाने चलिए मैं वालों ना की आपकी हौसला बात अफजाई करता हूँ करेंगे या क्योंकि वो जिम ना जाने वालों की हौसला अफजाई करेंगे? वो खामा खामे मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ वो शायद कहीं मिस हो रहा है। कहने हाँ। का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको इंटेलेक्चुअल काम पे उभारे या फिजिकल काम पे उभारे वो कभी भी पसंदीदा नहीं होती। मानना दुनिया का सबसे आसान काम है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुसलमान क्यों हैं या आप शिया मुसलमान क्यों हैं, तो आप क्या जवाब देंगे सिवाय इसके कि मैं इसमें पैदा हुआ था? ठीक है। मैं मतलब तो तो अगर हाउ मुसलमान हूँ इजी या हाउ आगे इजी इज सब इट? शिया मुस्लिम हूँ तो मैं तो जी जी, बाय बर्थ हूँ ना, मैं बाय चॉइस वही तो। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हाउ इजी इट इज कि हाँ। आप एक मज़हब पे पैदा हों और फिर आप ये मान लें कि यार मैं तो इतना बड़ा औसम इंसान हूँ, इतना मैं ग्रेट हूँ कि मुझे अल्लाह ने वाहिद सच्चे मज़हब के वाहिद सच्चे फ़िरक़े में पैदा कर दिया। दिस हम्म इज़ वेरी इजी। हम्म तो हर कोई जो है वो किसी भी चीज़ को मानना वो बहुत आसान होता है, ख़ास तौर पे अगर आप उसका कॉज जो है वो मेटाफिजिकल बना दें। हम्म किसी भी चीज़ का मेटाफिजिकल कॉज को मान लेना इंतहाई आसान होता है। अगर मैं आप जब मैं कहता हूँ, मेरी मुराद आपकी ज़ात नहीं है, मैं हम्म जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को ये कहा जाए कि तुम्हें नज़र लग गई है इसलिए तुम्हारा कारोबार ख़राब हो गया, ये वो उसके लिए मानना बड़ा आसान होगा। अगर हम्म कहे फलां की बद्दुआ लग गई है, फलां ने तावीज़ कराया हुआ है, बड़ा आसान होगा। तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए, इट्स वेरी इजी। लेकिन अपने आप को एनालाइज करना कि यार मैंने गलती क्या की है। अगर मैं मार्केट में दुकान खोल के बैठा हूँ तो मेरी प्रोडक्ट ख़राब है, मेरी मार्केटिंग ख़राब है, मेरा रवैया ख़राब है, मेरे जो है वो कहना चाहिए पॉलिसी ख़राब है कस्टमर्स के साथ। वो कभी तो उसको एनालाइज करना मुश्किल होता है। हम्म यानी आप रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हम कितनी दफ़ा ये कहते हैं कि हाँ अल्लाह की मर्ज़ी, यार बस क्या करें ऐसा ही होता है। उसकी वजह ये होती है कि हम कभी भी अपना ऑनेस्ट ब्रूटल एनालिसिस नहीं करते। हम क्या मतलब कोई भी नहीं करता। तो इसी वजह से मज़हब फैलते हैं, इसी वजह से मज़हबों ने प्रिवेल किया कि इट्स इजी। ये कितना आसान है कि आपको ये मालूम कर लें कि हाँ भाई एक खुदा बैठा है आसमानों में, वो बताएगा क्या करना है। उसका ये एक स्पोक्स पर्सन है। आप इंडिया में जाएं तो वो पंडित है, पाकिस्तान में हैं तो इमाम साहब हैं, अफ्रीका जाएं तो कोई शामन था आज, या फिर कोई पैस्टर है, वो आपको बता देगा कि भाई ये है खुदा तुमसे ये चाहता है तुम ये करो। तो इट्स हम्म वेरी इजी। लेकिन खुद अपने आप को तख्लीक करना एज अ मॉरल पर्सन या एज अ कहना चाहिए थिंकिंग पर्सन, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो दुनिया में मुश्किल काम करने वाले हमेशा बहुत कम लोग होते हैं। आसान काम करने वाले तो करोड़ों में होते हैं। हम्म। तो ये इससे तो मतलब क्या साबित होगा? नहीं मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप लोगों ने या आपके अलावा पुरानी जो, जैसे मैंने जी जी। हिस्टोरिकल रेफरेंस दिया, तो जो ये मुश्किल काम था यानी वो दीन को छोड़ के लादीनियत की तरफ जाना, ये मुश्किल काम था, और इसलिए अ, इसलिए ये ठीक काम है, यानी इसलिए जी ये इसकी हक्कानियत ये है कि चूंकि ये मुश्किल है। नहीं, मुश्किल काम यह है कि किसी भी सोसाइटी के प्री फॉर्म्ड बिलीफ्स जिन हम्म जिन पर आप पैदा हुए हैं, चाहे आप चारवाक थे, चाहे आप एपिक्यूरियस है, चाहे आप आज के मुल्लिदीन हैं, चाहे वो एक्स मुस्लिम्स हैं, एक्स हिंदूज हैं, एक्स क्रिश्चियंस हैं, किसी भी बिलीफ सिस्टम के अंदर पैदा होकर उसको क्रिटिकली एनालाइज करके हम्म उसका इनकार करने की हिम्मत पैदा करना, ये एथियज्म है। हम्म हक्कानियत का फैसला तो जी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास तमाम इल्म नहीं है, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आप सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल ट्रूथ तक पहुंचते हैं। हम्म सबसे ज़्यादा करीबी सच मेरा ये है। तो वो आज मेरा यही है कि दुनिया में कोई मज़हब नहीं है, आसमानों से कोई निदा नहीं आती, ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है। आज मैं ये मानता हूँ।
ये मेरा आज का सच है, हो सकता है लेकिन अगले 15-20 सालों में कुछ और हो जाए। आप इल्हाद की हक्कानियत की दलील के तौर पे आप ये बात कर रहे हैं जी। कि चूंकि एक सेटल्ड एस्टैब्लिश्ड मजहब को छोड़ के गौर व फिक्र करके किसी ऐसे रास्ते पे जाना जहां मजहब नहीं है, हम्म। तो इसलिए ये चूंकि मुश्किल काम है इसलिए ये उसकी हक्कानियत को साबित करता है। आप ये दलील मुझे दे नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा कि हक्कानियत को साबित करने से आप क्या मुराद ले रहे हैं। इससे सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और हम्म। फिर इतनी हिम्मत अपने अंदर पाते हैं कि आप उसको ऐलान भी कर सकें, मैं कह रहा हूँ ये इल्हाद है, और ये मेरा या बाकी मुल्हिदीन का आज का सच है। ये और ये आपकी सच हिम्मत हो मुझे। सकती है, ये आपकी हम्म। बहादुरी हो सकती है आपका। आप मतलब देखें ना, अब गैलीलियो ने जब 17वीं सदी में दावा किया तो कैथोलिक चर्च उसके खिलाफ हो गया। 16वीं सदी में जी। 17वीं सदी में, 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में, चलिए 1600 में, 17वीं होगी। हाँ 1609 में। और फिर जाके अभी 20वीं सदी में 1992 3 में जाके वो कैथोलिक चर्च ने माफ़ी मिली। माफी मांगी। हम्म। उन्होंने कहा वो ठीक था, हम गलत थे। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं, ये तो एवोल्यूशन है। लेकिन आप इसको ये आप देखिए ना कि हक्कानियत के तौर पे तो नहीं। क्या आम मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने मज़हब को, जिस पे वो पैदा हुआ है, जिसके अलावा, पैदा होने के अलावा उसके पास उसकी हक्कानियत की कोई दलील नहीं है, कि वो उसको उन पैमानों पे परख सके जिन पैमानों पे आज हम सच्चाई को परखते हैं, फ़लसफ़ा, साइंस, हिस्ट्री, एनालिटिकल रीजनिंग, क्या उसमें इतनी हिम्मत है? अगर इतनी हिम्मत है, उसके बाद भी पाकिस्तान के 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ मुसलमान हैं, तो सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है, लेकिन देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हर मुसलमान को, पाकिस्तानी है या किसी और खित्ते का रहने वाला है, हर मुसलमान को अ, दलील की बुनियाद पर मुसलमान होना चाहिए, तो ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो बाय बाय बर्थ किसी भी मजहब पर है वो कभी भी गौर व फिक्र तो की हद तक नहीं जाता। ऐसे इंसान के लिए हक़ानियत की दलील क्या होगी फिर आपके नज़दीक, जो पैदाइशी मुसलमान है? नहीं, लेकिन उसका एक थॉट प्रोसेस तो चलता रहेगा ना। कौन सा थॉट प्रोसेस? अपने अपने घर के अंदर जिस मज़हब को उसने पाया, उसी को उसने सच्चा मान लिया, इसमें थॉट प्रोसेस कहाँ से आ गया? ये तो हर्ड मेंटालिटी है। नहीं, उसने उसने सच्चा मान लिया, लेकिन इस्लाम तो कैसे कहता है माना? कि हर बच्चा जो है वो वो फितरत पे पैदा होता है, और इस्लाम दीन फितरत है। अब ये तो वही बात हो गई ना, कि जो अवैध भाई मिसाल देते हैं कि सबसे दुनिया में सबसे अच्छे आलू के पराठे मेरी बीवी बनाती है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। नहीं, फिर उवैस तो भाई की वो वही मिसालें तो बात बहुत हो ही बेकार किस्म की नहीं, वो मिसालें तो होती हैं ना, वो वैस चाहे मुझे नहीं, सुन भी मेरे रहा हो। मेरे कहने का मतलब ये है मतलब कि ये तो ब्लोइंग योर ओन हॉर्न है ना, कि इस दीन, हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है और इस्लाम दीन फितरत है। आप एक काम कीजिएगा कि एक किसी अपनी पसंद के मुफक्कर को बुलाइए और उससे पूछिए कि दीन फितरत कहते किसको रहे हैं। इस पे कोई कंसेंसस नहीं है। हम्म, यानी हमारे पास जो चंद चीज़ें हैं, दीन फितरत, मुतवातिर रिवायात, इजमा, इन पे कोई कंसेंसस नहीं है। किसी को नहीं मालूम कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। हम्म, तो ये बस एक मैं सूअ अदब के लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कि ये एक बनाई हुई बात है कि दीन फितरत है और इस्लाम दीन फितरत है। हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, इस्लाम दीन फितरत है। हाँ। अच्छा, मतलब नहीं, कैसे? आप इसको, गुलाम बनाना इंसान की फितरत है, हाथ काटना इंसान की फितरत है, नहीं। खाली अपने लोगों को देना इंसान की फितरत है। इंसान की फितरत उसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी है। मतलब इंसान की फितरत ऐसी कभी नहीं रही। इंसान की फितरत तो ये थी कि आज तक, मॉडर्न डे आने तक, 90% लोग, अगर हम तमाम इंसानों का जायजा लें जो कैलकुलेटेड गैसेस के जरिए जो अब तक पैदा हुए हैं आज तक, उसमें 70% से ज़्यादा लोग सूअर खाते थे। नहीं, वो इंसान की फितरत थी। गुलाम इंसानों का बनाना गोश्त खाया और जाता था। गुलाम बनाना यानी हाथ काटना, आप इस्लामिक जो ये जो जुरिस्प्रूडेंस है और इस्लामी सजाओं पे आप तंज कर रहे हैं कि वो अ, नहीं नहीं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि तंज नहीं कर रहा, मैं खाली बता हाँ, रहा हूँ क्या ये इंसान की फितरत है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप इसको इंसान की फितरत मानेंगे? ये तो और अगर ताजीरात, मानेंगे तो नहीं ये तो किस नहीं, दलील से मानेंगे? ये तो ताजीरात है ना। ये तो ताजीरात हैं। आप जब आपने कोई रिट कायम करना होती है, अभी आपके अमेरिका में इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं मारते रहे, डेथ पेनल्टी नहीं है, है ना।
لیکن کیا وہ آج بھی اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے؟ ڈیتھ پینلٹی تو ہے امریکہ میں، کم چند اسٹیٹس میں ہے، سب میں نہیں ہے، ہے نا؟ لیکن یہ کہ جو ہے جسمانی طور پہ ہاتھ کاٹ دینا یا پاؤں کاٹ دینا، ایک پہلی چوری ہو تو ہاتھ کاٹ دو، دوسری چوری ہو تو پاؤں کاٹ دو، تیسری چوری ہو تو دوسرا ہاتھ کاٹ دو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب انسانی فطرت ہمیشہ ایک ایوولوشن سے گزری ہے. ہوں، تو یہ کہنا کہ ایک مخصوص دین فطرت ہے، یہ ایک مذہبی دعویٰ ہو سکتا ہے، عقلی فلسفیانہ سائنٹیفک دعویٰ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج خود ہم نے مطلب مسلمانوں نے جو ہے وہ اسلام کے آنے کے 2 یا 3 صدیوں کے اندر ہی اس سزا کو موقوف کر دیا تھا. آپ ہوں، اپنی تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ کو 4 سے 5 کیسز ملیں گے ہاتھ کاٹنے کے، کسی نے نہیں کاٹے. یعنی خلافت راشدہ کے بعد یہ جو ہے انسان نے یہ چیز چھوڑ دی تھی. ہوں، تو اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے تو کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سزا موقوف کر دی جائے گی، لوگ خود چھوڑ دیں گے. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اپنی تاریخ میں آپ ایک کیس نہیں نکال سکتے جس میں کسی زانی کو 4 گواہوں کی وجہ سے سزا دی گئی. یہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ تو 4 گواہ وہ پیش نہ کریں. آپ کے پاس جتنی بھی مثالیں ہیں وہ کنفیشنل ہیں، ہوں، خود لوگوں نے آگے کہا ہے کہ ہم نے کر لیا ہے. رسول اللہ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت راشدہ کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں، منگولوں سے پہلے بنو عباس تک کے دور میں جو ہمارا گولڈن پیریڈ تھا جہاں تک جی، 1250 تک، تو وہاں تک آپ کو ایک کیس نہیں ملتا جہاں پہ 4 گواہوں پہ جو ہے وہ کسی کو زنا کی سزا دی گئی ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فطرت اگر ہے تو یہ فطرت آخر کہاں چھپی ہوئی ہے؟ نہیں وہ دیکھیں، چار چار گواہوں کا مقصد تو اسلام نے اس فیل کو سوسائٹی میں بہت زیادہ گلیمرائز ہونے سے روکنے کے لیے، یا بار بار بہتان یا الزام کے ذریعے سے معاشرے میں ایک بے چینی پیدا کرنے سے روکنے کے لیے، اس مقصد کے لیے میرا اس سے خیال ہے شاید اس سے وہ، بے چینی کیسے؟ خیر، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن آپ کی بات بالکل بھی درست نہیں ہے. اب میری پرسیپشن یہ ہے، لیکن چلیے. بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی دلیل، وہ تو کوئی جو، اگر ہم کسی اسکالر سے بات کریں گے تو جی اس جی، کے اسی پاس لیے کوئی نہ اسی کوئی لیے اس کی میں دلیل ہوگی. اس پہ نہیں نہیں کر رہا، یہ میں آپ ایسا کو خالی مسئلہ، اس پہ مثال دے بہت رہا دفعہ ہوں. بات ہو چکی ہے اور جی یقینی جی طور پہ اس کی کوئی نہ کوئی دلیل جی. موجود ہوگی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی فطرت یہ ہے نہیں ایسی. انسان کی فطرت فلوئڈ ہوتی ہے، ایوالو ہوتی ہے. تو کسی مذہب کو جو ایک مخصوص زمانے میں قید ہے، اس کو آپ دین فطرت قیامت تک کے لیے نہیں بنا سکتے. اس کو لازماً آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور یہ چینج مسلمانوں نے خود کی. ہاتھ کاٹنا چھوڑ دیا، رجم کرنا چھوڑ دیا. آج جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا سوائے چند انتہائی چند متشدد لوگوں کے، جن کو ہم خود پسند نہیں کرتے. ہوں، کوئی نہیں کرتا. جب قید خانے ایجاد ہو گئے، سرپلس فوڈ ایجاد ہو گیا، مسلمانوں کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ زرعی زمینیں آ گئیں عراق کی، شام کی اور مصر کی، ہوں، تو انہوں نے خود سے یہ سب تمام سزائیں موقوف کر دیں. جب ریولوشن آنے سے پہلے، خلافت ختم ہونے سے پہلے، یہ جو گیز ہوتے ہیں ان کی سزا موقوف کر دی تھی سلطنت عثمانیہ نے. خواتین کے پردے میں بہت ساری چینجز کر دی تھی. تو جو ہے وہ اس اس کی طرح تو کی اسلام چیزیں ہمیشہ اجازت رہی ہیں. دیتا ہے. مثلا پاکستان میں آ، تعزیرات پاکستان بھی ہے اور اسلامی تعزیرات بھی ہیں. ایران ایک اسلامی ملک ہے، وہاں اسلامی تعزیرات بھی ہیں اور دنیاوی تعزیرات بھی ہیں. تو یہ تو ایک اسلام آپشن دیتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہی سزا دینی ہے جو اسلام نے پرسکرائب کی ہے. آپ کا جو اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، آپ اس کے مطابق کمپیٹیبل کر کے آپ آگے یہ بڑھ سکتے ہیں. اجازت قرآن مجید میں کہاں بیان ہوئی ہے یا کون سی حدیث میں بیان ہوئی ہے؟ آپ نہیں بیان ہوئی. یہ مسلمانوں نے کیا ہے. اس کی کیا اجازت مسلمانوں نے کیا؟ کہ ان سزاؤں کو موقوف کرنا، ان چیزوں کو بدل دینا تو زمانے کے اجتہاد ہے نا، لحاظ سے انسانوں نے کیا ہے. تو اجتہاد ہے نا اسلام. اچھا، اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جہاں آپ کے پاس کوئی گائیڈنس موجود نہ ہو. لیکن جب اچھا، کھلی ہوئی یہاں گائیڈنس ہمارا موجود ہے. چونکہ یہ وقت ختم ہو رہا ہے، میرا خیال ہے پھر اچھا، ہم یہیں سے ٹھیک ہے. آپ سے دوبارہ